Hello, hi everyone, welcome back to the channel. So this is Ramandeep Singh and I am back with yet another video in the series where we are mastering the technical interview, solving the important problems to prepare for the technical interviews. And in this video lecture, we'll be solving the second problem of the string section, which is find all anagrams in a string. So this problem is in the second uh, this is the second problem of this strings section, which you can access from this sheet. I will attach the sheet link in the description. I found it from some maybe from YouTube channel or something like that, or from some social media platform, and this one is useful. So I would solve this problem. Find all anagrams in a string. So let's see. Let's read the problem statement. Given two strings S and P, return an array of all the start indices of P's anagrams in S. You may return the answer in any order. So what does that says is कि भाई हमारे पास क्या है कि we are given two strings है ना, we are given two strings S and P. एस एंड पी दिया हुआ है और हमें एक एरे रिटर्न करना है. सो वी नीड टू रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल द स्टार्ट इंडिसेस ऑफ पी, पी's anagrams in S. So what is an anagram? Anagram is rearrangement of a string, rearrangement of characters of a particular string. So let's say P is a string. So all of the rearrangements which we can form with the characters of P will be anagrams of P. So here we can see that P is A B C. So P is A B C. So what are rearrangements? A C B. ठीक है, A C B. A को वही रखा, B और C को रिप्लेस कर दिया, फिर A और C यहाँ इसमें A और C को रिप्लेस कर दिया, A और B को रिप्लेस कर दिया, B A C, C को वही रखा, A और C को रिप्लेस कर दिया, B को वही रखा. सो ए को वही रखा, बी और सी को रिप्लेस कर दिया, बी को वही रखा, इनको रिप्लेस कर दिया, सी को वही रखा, बी और ए को. सो दीज आर एनाग्राम्स, है ना. कितने एनाग्राम्स बन सकते हैं, काउंट करना, मैथ्स देखना इसकी क्या है. सो दिस इज कॉल्ड एनाग्राम्स ऑफ अ स्ट्रिंग. अच्छा, ये लिंक भी दिया हुआ है जैसे लीड कोड में, यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन दी हुई है. Found by rearranging the letters of a different word or phrase using all the original letters exactly once. तो मतलब जो भी letters आप use कर रहे हो वो exactly एक बार use करने हैं. You cannot use the same character twice. ठीक है. I hope you learned the definition of an anagram. So let's move ahead in the question. The question is, दो strings हैं S और P. अपने को क्या करना है कि वो सारे इंडिसेस एक वेक्टर या एरे में पुश करके रिटर्न करने हैं जो जहां से इस पी की शुरुआत होती है. जैसे इस केस में देखो, ए बी सी लाइज हेयर, सी बी ए, मतलब ए बी सी का एनाग्राम ही तो है ये, सी बी ए. तो एक इंडेक्स हो गया 0. फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ बी ए सी मिलता है हमको, विच इज ऑल्सो एन एनाग्राम ऑफ ए बी सी. तो बी ए सी में जो स्टार्टिंग करेक्टर है बी, it lies at index number 6. So let's understand it here. तो S है हमारे पास, C B A E, C B A E, B A B A C D, B A B A C D, and P हमारे पास है A B and C. So we can see that at the very first position 0, we can find an anagram of this ABC. ठीक है. And then at this position we have again found an anagram of P, BAC. So this index is 0 and this index is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So that's my answer. This is what you have to do in this problem. And just pause the video here and try to solve this problem on your own. You can take hints from here. I think hint section is there है ना, ठीक है, नहीं है इसमें, दिख नहीं रहा। तो देखो कैसे होगा, सिंपल सी। अच्छा, यहाँ से एक चीज आप देख सकते हो, कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान दिया करो। एस और पी की लेंथ तो 10⁴ के ऑर्डर में जा रही है, बट the key thing here is, which is important, that makes life lot easier, is S and P consists of lowercase English letters. तो मतलब कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो सॉरी, कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो, this one or this one, all of the characters in the string lies in that 26 वो 26 वाले चैनल में लाई करता है, ठीक है, A to Z, स्मॉल a to स्मॉल z। अब इसके बाहर जा ही नहीं सकते कैरेक्टर्स। नाउ यू कैन सी कि भाई अगर कोई भी स्ट्रिंग है उसमें कैरेक्टर्स हैं और उस स्ट्रिंग की लेंथ 26 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली कोई भी कैरेक्टर एक से ज़्यादा बार अपीयर करेगा, है ना। मतलब एक ये चीज़ है, मतलब कैरेक्टर विल अपीयर मोर देन वंस। अब आप इसमें देख सकते हो कि कैसे इस चीज़ को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द ट्रिक हियर। So let us see how we will be solving this problem using this exact trick that we have here. देखो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है? फ्रीक्वेंसी एरे होता है टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर अप टू अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो अपने एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेते हैं। So let's create it कि frequency array बनाते हैं for S and one for P. So let's f underscore S is the frequency array for S. तो first position corresponds to A, second position corresponds to B, third position corresponds to C and so on। ठीक है, तो क्योंकि ये एरे है तो मींस A corresponds to 0 इंडिसेस। अगर इंडिसेस की मैपिंग देखें, कैरेक्टर टू इंडिसेस की मैपिंग, B corresponds to 1, C corresponds to 2 and so on। Then we create another array which is for P, f of P, A, B, C again same 0 1 2। ठीक है, करते हैं अब ड्रायरन सॉल्यूशन को। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो देखो कर सकते हो आप, सिंपल वही वाइल लूप लगाओ और दो पॉइंटर्स ले लो आई एंड जे, सारे हर एक पे स्टार्ट कर करके देख लो। ठीक है, आते हैं इस पे आते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी के लिए इस एरे को बिल्ड कर लेंगे। तो ए बी सी 1 1 1 इनिशियलाइज विद 0 है ना, तो ए को काउंट कर लिया, बी को काउंट कर लिया, सी को काउंट कर लिया, मींस पी स्ट्रिंग में ए बी सी एक एक बार आ चुका है। सो लेट्स मूव टू द स्ट्रिंग एस नाउ। एस की भी हम उतनी लेंथ की जो पहली स्ट्रिंग है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेंगे इस एरे में, सेम एज द लेंथ ऑफ पी। तो पी की लेंथ 3 है, तो पहले 3 कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी हम इसमें स्टोर करा लेंगे। तो सी एक बार आया, बी एक बार आया, ए एक बार आया, वी आर डन। अब आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां अपने चेक कर लेंगे कि क्या दोनों एरे सेम है। हाँ है, दोनों एरे सेम है, तो हम रिटर्न कर देंगे वहीं से। ठीक है, तो पहली इट्स लाइक द अप्रोच विच वी आर डिस्कसिंग इज द काइंड ऑफ स्लाइडिंग विंडो या 2 पॉइंट्री कह सकते हैं, स्लाइडिंग विंडो कह लो इसको। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच है ये कि भाई इस साइज की विंडो पे हमें मूव करना है। तो पहले एक विंडो बनाई हमने एस में ऑफ द सेम साइज एज द साइज ऑफ पी। अब हमने मैच कर लिया कि क्या वो विंडोज मैच कर रही हैं, कर रही हैं, कर रही हैं, तो मतलब इंडेक्स नंबर 0 इज द आंसर। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारा हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी अरे बन चुका है, इसको अब नहीं छेड़ना है, ये बस कंपेयर करने के लिए है।
अब इस विंडो को हम स्लाइड करेंगे, शिफ्ट करेंगे, या कह सकते हैं इसको कि पहले विंडो थी CBA, सो वी विल CBA थी, अब इसको शिफ्ट करेंगे बाय वन कैरेक्टर, सो द न्यू विंडो वुड बी BAE. So this character is out and this character is in. तो E आ चुका है और C जा चुका है, and this is for this string S या frequency array of S. तो मॉडिफिकेशन जो भी आएगी वो S में आएगी, ना कि P में. तो C अगर बाहर गया है कि तो C की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0, CDE, तो यहां आएगा हमारा E, और E की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1. अब ये है हमारी नई विंडो, और ये है वो विंडो जो हमको चाहिए, है ना. तो दैट मीन्स हम अब कंपेयर करेंगे इन दोनों को, नहीं हो रहा, नहीं, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम. तो इसका मतलब क्या है, विंडो को आगे बढ़ाते हैं. विंडो को आगे बढ़ाने का तरीका, इसको शिफ्ट कर दो, शिफ्ट इट बाय वन कैरेक्टर अहेड. सो AEB, B कैरेक्टर इज इन एंड दिस B इज आउट. अगेन AEB, तो इसमें कुछ चेंज नहीं आए. आप क्या करोगे, B को एक बार पहले माइनस कर दोगे, B की फ्रीक्वेंसी को एक बार कम कर दोगे, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे. ओवरऑल देयर इज नो चेंज. पहले तोड़ दिया फिर जोड़ दिया. अब आगे बढ़ते हैं. फिर आगे फिर ये भी मैच नहीं कर रहे, तो हर स्टेप पे हम यही करते जाना है. एक कैरेक्टर अंदर लो, एक कैरेक्टर बाहर निकाल दो, फिर एक कैरेक्टर अंदर लो, फिर एक कैरेक्टर बाहर निकाल दो. And whenever you shift the window, you are supposed to compare these two arrays. If they are same, then you have to, if they are same, then that means the index at which the windows are matching, that index is a valid index which you want. अब इसको आगे बढ़ाते हैं. नई जो विंडो होगी वो ये होगी, EBA, सेम ही है, नो चेंज. BAB, अब B 2 हो जाएगा इस विंडो के लिए, ये फिर 0 हो जाना है. फिर ABA, A हो जाएगा 2, B 0, रेस्ट 0. फिर BAC, B1, C1, A1. वन वन वन, ठीक है, 1 1 1. तो अब मतलब अब देखो यहां पे मैच कर रही है दोनों एरेस. तो अब ये कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5 6. So this is index 6. So what we will do is we will push this index into the array. आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट करते हैं विंडो. ACD, A1, C1, D1, 0 है, ACD1. अच्छा सॉरी, इसको भी मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं. तो this is how we will be having the configuration after in the last window ACD में, ठीक है. तो ये हमारा आंसर है, and this we will return, ठीक है. That's all for this. This is the solution, and let's just write a pseudocode for this before we jump into the actual coding part. तो देखो फंक्शन लिख लेते हैं. कौन सा फंक्शन है ये, वही यूज करते हैं. Let's not confuse the audience. Find anagrams. Find anagrams. SP, ठीक है. यहां बनाते हैं f of s of size 26, initialize it with 0. फिर बनाते हैं f of p of 26, initialize it with 0, and then build that frequency array over the p. So for
अच्छा ये तो नहीं करना, p को बिल्ड करते हैं. So let's build over p f of p f of it. ठीक है. Then we would have another array which we need to build, f of s. अच्छा सॉरी, इटरेट तो इसी पे करेंगे, p पे ही करेंगे, बट बिल्ड वो करेंगे, समझ रहे हो. तो यहाँ पे इटरेटर वाला नहीं, वो वाली लूप यूज करेंगे. i इज इक्वल टू 0, i लेस देन लेट्स से s की लेंथ n है, और इस कौन सा सेकंड वाला p की लेंथ m है. तो वी विल इटरेट फ्रॉम 0 टू m, और f ऑफ s को बिल्ड करेंगे ओवर द p. ठीक है. p वाली विंडो s में चाहिए ना. लाइक दिस. अब हमारे पास p की फ्रीक्वेंसी अपना f ऑफ s में भी आ गई है, p की फ्रीक्वेंसी f ऑफ p में भी आ गई है. सो दिस इज f ऑफ p. So here compare for we can compare if at this point f of s is same as f of p. If it is, then we will push this index into the answer array. So we haven't declared the answer array, so let's declare it indices. So ये अपना आंसर array हो जाएगा. तो indices में dot push 0. देन वी विल अगेन यूज. अब आती है स्लाइडिंग विंडो वाली चीज. अब एक करेक्टर इन, एक करेक्टर बाहर, एक करेक्टर अंदर, दूसरा करेक्टर बाहर. ठीक है. फॉर आई स्टार्ट फ्रॉम m, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस. m से स्टार्ट करेंगे, जीरो पे इंडेक्सिंग है. तो पहले m करेक्टर्स तो कवर हो ही चुके हैं, फ्रॉम 0 टू m minus 1. सो विल स्टार्ट फ्रॉम m, मूव अप टू n minus 1 इन द स्ट्रिंग s. अब s स्ट्रिंग के mth करेक्टर को इंक्लूड करना है हमें, तो दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, s ऑफ i माइनस ए प्लस प्लस, और जो करेक्टर बाहर गया उसकी फ्रीक्वेंसी हम घटा देंगे, i माइनस एम माइनस ए प्लस माइनस माइनस. तो वो उसकी गई, ये इन हो गया. आफ्टर मूविंग द विंडो again compare if f of s is same as f of p. If it is the case, then push this indices dot push i minus m. i minus m तो 0 हो जाएगा. +1. ठीक है. एंड इसके बाद क्या करोगे, दिस इज इन दिस फॉर लूप, एंड फाइनली at the end you are going to return this indices array. अच्छा एक कंडीशन रह गई है, ऐसा कोई लाइक उसमें दिया नहीं है लीड कोड में कि n इज ऑलवेज लेस देन m. सो वी हैव टू राइट इफ n इज लेस देन m, तो रिटर्न कर दो indices राइट फ्रॉम देयर. तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं हम, सो दैट वी गेट lesser number of iterations while we solve a problem, है ना, in debugging. ठीक है, चलते हैं. Let's calculate n, s dot size, m, p dot size, and indices array.
Let's create a frequency array 260 f of s and also f of p 260. ठीक है. So once we have this and we can compare n and m. So if n is less than m, return कर दो indices right from here. Then we're gonna move to the next part, that is calculating the frequency. So for it of p, so we can see f of p. ठीक है, सही कर रहे हैं ना अपने. हाँ, फॉर आई टी पी एफ ऑफ पी. ठीक है, पी की फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली. अब आते हैं एफ ऑफ एस में पी की फ्रीक्वेंसी काउंट करने पे. पहली विंडो तैयार है. एफ ऑफ एस इज सेम एज एफ ऑफ पी. रिटर्न कर दो, नॉट रिटर्न, इंडिसेस में पुश कर दो 0 फॉर I is equals to m, I less than n, I plus plus, f of s, s of I minus a plus plus f of s minus m minus a minus minus if f of s is same as f of p, indices dot push back I minus m plus. Sorry, I hope this is correct. गड़बड़ कर रहे हैं कुछ ना कुछ. पी की विंडो बिल्ड की. ओके सॉरी, यहाँ भी पी की विंडो बिल्ड कर दी, एस की विंडो बिल्ड करनी थी. ठीक है. Okay, so that's all for this problem, and let's discuss the time and space complexity for this. So time complexity क्या होगी इसकी? So we can see that we are iterating over this each string exactly once. तो मतलब जो भी कर रहे हैं बट जा तो एक बार ही रहे हैं ना. ओवर द स्ट्रिंग एस, ओवर द स्ट्रिंग एस हम विंडो को स्लाइड कर रहे हैं अप टू द लास्ट करेक्टर. So in the worst case, every character is visited exactly once. So the time complexity would be big of n, and then since we are also moving over the string m, so that would be big of n. So big of n plus m, you can say. While the space complexity would be constant because we are using frequency array of size 26, which is a constant space. So the constant space is not changing with the size of the input. So that's why the space is constant. Okay? So I hope you learned something from this video, and it was a productive time you gave to it. And that's all for this video. Thank you for joining me. I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.